Hello students, welcome to our live APS classes, and as all we know that this is our foundation course, especially from the students from 9 to 12th. And in our today's live lecture we will discuss from the biology part, and the name of the chapter is the reproduction in organisms. So first of all, good evening to all the students. तो बेटे सबसे पहले मैं देखना चाहूंगी कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वेरी गुड बेटा, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सो बेटा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जस्ट आई विल गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द continuity of the species generation after generation. So each and every organism lives only for a certain period of time, and after which it meets the natural death. The period between the birth and the natural death of an organism is called lifespan. तो जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है बर्थ से लेके डेथ के बीच में, दैट टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज द लाइफ स्पैन. तो बेटे, मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देना मैंने शुरू कर दी है, तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी जुड़ने की कोशिश करें. तो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ही हमारे साथ अभी जुड़ पाए हैं. मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं. यस, सभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं. तो बेटे, मैंने अभी कहा कि द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन, एंड द लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम लेस देन 1 day to more than 4000 years. जो लाइफ स्पैन का जो ड्यूरेशन है वो कम से कम एक दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 years का भी हो सकता है. एंड द लाइफ स्पैन is not related to the size of an organism as well as complexity of the organism. For example, जो मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि जो एक लाइफ स्पैन का जो एक टाइम पीरियड है वो ना तो वो साइज के साथ रिलेट करता है, ना ही किसी ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैच करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्रो एंड पैरेट, there is no difference between the size of the crow as well as parrot, but the lifespan of the crow is near about 15 years, whereas the lifespan of the parrot is 140 years. तो देखो, दोनों के साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आफ्टर दैट जो इनका लाइफ स्पैन है, there is much variation between the lifespan of the two words, crow as well as parrot. Crow का जो लाइफ स्पैन है that is near about 15 years, whereas the lifespan of the parrot is near about 140 years. तो दूसरी तरफ अगर हम एक और उदाहरण देते हैं, let us take one more example, mango as well as people. Mango tree lives only for 200 years, whereas people, and the scientific name of people is Ficus religiosa, and its lifespan is near about 2500 years. तो इसमें देखो, जो मैंगो का जो एक लाइफ स्पैन है मैंगो ट्री का, दैट इज नियर अबाउट 200 years, वेयर एज अगर हम पीपल का लाइफ स्पैन देखते हैं दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू द मैंगो ट्री. तो वो कितना है? नियर अबाउट 2500 years. तो जो एक रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस that leads to the continuity of an organism. The adults which give rise to the young ones, they are called as the parents. जो adults give rise करते हैं young ones को, they are known as the parents. And the young ones जो होंगे, they are known as the offsprings as well as daughters, both in case of the singular as well as plural. So this is the reproduction in the organisms.
तो जो एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, आफ्टर दैट द साइकिल ऑफ द रिप्रोडक्शन लीड्स फ्रॉम द बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड अल्टीमेटली ends upon the death. So this is the continuity of the cycle of the reproduction that begins from the birth, and after that growth, and after that maturity, and ultimately it ends upon the death. So reproduction leads to the continuity of the species, generation of after generation. So before starting our live lecture, so this is the brief introduction regarding the chapter that is reproduction in organisms. And in our today's live lecture, आज के जो हमारे important questions जो हैं इस chapter से related, that are 20 questions. आज के जो हमारे 20 questions हैं जो कि हम आपके साथ discuss करेंगे. तो आई होप कि सभी की पार्टिसिपेशन जो है स्टूडेंट्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. और मैं बार बार आपको कहती हूँ कि इट डजेंट मैटर कि आप आंसर गलत दे रहे हैं, इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं, पर पार्टिसिपेशन जो है वो आप अपने आंसर की देने की जरूर रखें. तो एक बार बेटे मैं आप चेक करना चाहूंगी शुरू करने से पहले कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो ईशांत, कृतिका, अकृत, आदित्य राणा, सानिया, मुद्दित बेटा, वेरी गुड, सिद्धेश, तानिया, अक्षिता बेटी भी जुड़ गई है, प्रशांत बेटा भी जुड़ गया है. सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जुड़ गए हैं. तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं बेटे, हरी अप और जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें ताकि मैं अपना जो लाइव लेक्चर का जो टॉपिक है वो शुरू कर सकूं. सो बेटा लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, and that question is from the biology part, and the name of the chapter is the reproduction in organisms. So your first question is process of fusion of haploid cells is, ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइदर सेल साइकिल, बी म्योसिस, C mitosis, and D is the syngamy. तो बेटे these questions are very important from the examination point of view. So हरिया बेटा इसका आंसर देने की कोशिश करें. I will repeat my question again. Process of fusion of haploid cells. Your options are cell cycle, meiosis, mitosis, syngamy. तनु बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे. सिद्धेश बेटा योर ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन. आदित्य राणा बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. कृतिका बेटी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. प्रशांत बेटा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन. ईशांत, मुस्कान बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और स्टूडेंट्स भी बेटे आंसर देने की कोशिश करें. हरी अप. एंड अगर कोई आपकी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स है बेटे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं. और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप डिटेल में इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एपीएस लाइव क्लासेस में जाकर इस चैप्टर को थॉरली वहां पर आप सुन सकते हैं. सो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर दे दिया है. सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स इज syngamy. Syngamy. So your option D is the right answer for the question number 1. Now shift to the question number 2. Sanya beta, option C is the wrong option. But doesn't matter. आप कोशिश करें दोबारा से बेटे. Now shift to the question number 2. आज का हमारी एपीएस लाइव क्लासेस का जो टारगेट है बायोलॉजी पार्ट से, and the name of the chapter is reproduction in organisms, that is of 20 questions. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटे, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज.
लाइफ स्पैन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ is called as the lifespan. So maximum lifespan of the dog is, your option is 20 years, B 15 years, C 10 years, and D is 5 years. Maximum lifespan of the dog is either 20 years, 15 years, 10 years or 5 years. जल्द से बेटे इसका आंसर देने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पैन, सबसे ज्यादा इसमें जो लाइफ स्पैन है वो किसका है? मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो डॉग का है, इनमें से कितने इयर्स का है और कितना है मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है डॉग का? ये सिद्धेश बेटे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, कृतिका बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज, ईशांत मुस्कान बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आदित्य बेटा ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है, प्रशांत बेटा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तनु बेटी ने भी सही आंसर दिया है, तानिया ऑल्सो हैव गिवन द राइट आंसर। सानिया बेटा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, बट डजंट मैटर, आप दोबारा से कोशिश करें। सबसे ज्यादा जो ईयर्स का जो स्पैन है डॉग का, वो कौन कितने ईयर्स का है? आइदर 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखें अपने क्वेश्चंस का आंसर देने में। और सानिया बेटे जब भी आप आंसर दें क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। सो बेटा मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज 20 ईयर्स। तो सानिया बेटी आज ही हमारे साथ जुड़ी है बेटे, तो फर्स्ट एक आपके लिए डायरेक्शन है कि इन क्वेश्चंस को आपने बेटे अपनी नोटबुक्स में जरूर लिखना है। सानिया बेटे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं या नहीं। विद इन 5 सेकेंड में आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दें। So the maximum lifespan of the dog is 20 years. So your option A is the right answer for the question number 2. सानिया बेटे मैंने आपसे एक क्वेश्चन इरेज किया था। Now your question number 3. And your question number 3 is, which one is vegetatively propagated by leaf segments? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है बाय द लीफ सेगमेंट्स? ऑप्शन ए इज अगेव एंड कैलेंचो, बी ब्रायोफाइलम एंड कैलेंचो, सी एस्पैरागस एंड ब्रायोफाइलम, एंड डी इज क्रायोसेंथम एंड अगेव। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्रोसेस है बाय द लीफ सेगमेंट्स। सेजल बेटा आज आप लेट जुड़े हैं। सिद्धेश बेटे ने इसका आंसर दे दिया है, एंड सिद्धेश यू हैव गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। Which one is vegetatively propagated by the leaf segments? Your option is agave and calencho, B bryophyllum and calencho, C asparagus and bryophyllum, D cryosanthemum and agave. मुद्दित बेटे ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा। ईशांत ने भी सही आंसर दिया है। कृतिका ने भी सही आंसर दिया है। सानिया also have given the right answer. Prashant also have given the right answer. So beta your option regarding the question number 3, that is which one is vegetatively propagated by the leaf segments, that is bryophyllum and calencho.
So option B is the right answer for the question number 3. Now shift to the question number 4. हिमांशु बेटा वेरी गुड, के बेटे बहुत अच्छे, आपने सही आंसर दिया है. Now we will shift to the question number 4, and your question number 4 is Caesium is grafted on stalk. Caesium जो है it is grafted on the stalk. Quality of fruits produced will depend upon the genotype of. That means whatever the quality of the fruits that are to be produced will depends upon the genotype. जो quality होगी fruits की, that fruits produced, and that quality of the fruits will depend upon the genotype of A. Caesium, B. Stalk, C. Both A and B, and D. None of the above. Caesium is grafted on stalk, and the quality of the fruits produced will depend upon the genotype of either Caesium, B. Stalk, C. Both A and B, and D. None of the above. अक्षिता बेटी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा. तनु बेटी ने भी सही आंसर दिया है. अब हम देखते हैं किस किस बच्चे ने जो आंसर सही दिया है. तो अक्षिता, तनु, कृतिका, मुद्दित, तानिया, ईशांत, मुस्कान, सेजल, प्रशांत, सानिया, हिमांशु. So all the students have given the right answer for the question number 4. That is your option A is the right answer for the question number 4. So Caesium is grafted on stalk. Quality of the fruits produced will depends upon the genotype of Caesium. So option A is the right answer for the question number 4. Next, shift to the question number 5. Which one undergoes longitudinal binary fission? इनमें से कौन है जो longitudinal binary fission के undergoes जाता है? Your option A is Euglena, B. Plasmodium, C. Planaria, and D is Paramecium. तो बेटे मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगी, क्योंकि लाइव क्लास में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस कर सकें. तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप इसका वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप एपीएस क्लासेस में जाकर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स आप डिटेल में वहां पर इस चैप्टर को सुन सकते हैं. सो योर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच वन अंडरगोज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन? Your option is Euglena, B. Plasmodium, C. Planaria, and D is the Paramecium. मुद्दित बेटे ने आंसर दे दिया है. अब हम ये देखते हैं कि किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है. अक्षिता, ईशांत, मुस्कान, अभिषेक, कृतिका, अकृत, मुद्दित, तानिया, हिमांशु, सानिया, सेजल, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 5, यूग्लिना इज द प्रोसेस that undergoes longitudinal binary fission. So your option A is the right answer for the question number 5. Yes, Prashant beta, you also have given the right answer. Now shift to the question number 6. And your question number 6 is, it is your question number 6. So beta, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फॉर मोर वीडियोस. सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज, और सब्सक्रिप्शन का बेटे टारगेट रखें, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि बच्चे जो हैं और बच्चे भी जो हैं वो घर बैठे आपके चैनल के साथ जो है वो जुड़ सके और घर बैठकर वो इस चीज का बेनिफिट ले सके. सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद अ फीमेल गैमीट इज. जब भी मेल गैमीट का फ्यूजन होगा फीमेल गैमीट के साथ, एट दैट टाइम द कंडीशन इज सिनगैमी,
B. Porogamy. C. Double fertilization. D. Triple fusion. Fusion of male gamete with the female gamete. It is known as either syngamy, porogamy, double fertilization, or triple fusion. I will repeat my question again. Fusion of male gametes with the female gametes is syngamy, porogamy, double fertilization, triple fusion. सो मैं चेक कर लेती हूँ कि किन किन बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। अभिषेक बेटे ने आंसर दे दिया है इसका, एंड बेटा इट इज द राइट आंसर। अक्षिता बेटी ने भी सही आंसर दिया है। आदित्य राणा बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, that process is does not known double fertilization. तानिया बेटी ने सही आंसर दिया है। सानिया बेटी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सेजल बेटी ने भी सही आंसर है। प्रशांत also have given the right answer. आज की सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट है दैट इज नियर अबाउट 575 लिखा है। तो चलो इस टारगेट को जरूर पूरा करें, और ये बच्चे आप लोग इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। मुदित ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया बेटे इसका। हिमांशु बेटा आपने भी सही आंसर दिया है। बेटा ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। एक और बच्चा नया है पर आई डोंट नो, पर बेटा ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो फ्यूजन ऑफ मेल gamete with the female gamete is known as syngamy. जब भी फ्यूजन होगा मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट के साथ, एट दैट टाइम द कंडीशन इज नोन एज सिनगैमी। सो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 7, एंड योर क्वेश्चन नंबर 7 इज स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली थ्रू। स्वीट पोटैटो जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिवली थ्रू आइदर लीव्स, B. Parthenogenesis, C. Roots, and D. Buds. Sweet potato multiplies vegetatively through either leaves, either parthenogenesis, either roots, or either buds. It is your question number 7. So हरिए बेटा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें आप। कृतिका बेटी ने सही आंसर दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं आपके लाइव चैट पे किन किन स्टूडेंट्स ने जो है वो सही आंसर दिया है। कृतिका, अकृत, मुदित, अभिषेक, आदित्य, अक्षिता, सेजल, हिमांशु, प्रशांत, ईशांत, सानिया. So all the students have given the right answer for the question number 7, and your question number 7 is sweet potato multiplies vegetatively through roots. So your option C is the right answer for the question number 7. Now shift to the question number 8. And your question number 8 is plants with poor root system are propagated through. ऐसे plants जिनका की poor root system होता है, they are propagated through. किसकी वजह से वो propagate करते हैं? Either with layering, B. leaf cutting, C. stem cuttings, and D is grafting. I will repeat my question again. Plants with poor root system are propagated through. जिन प्लांट्स का रूट सिस्टम पुअर होता है, दे आर प्रोपेगेटेड थ्रू आइदर लेयरिंग, लीफ कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग. तो बच्चे मैं चेक कर लेती हूं कि किस किस स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का. ईशांत, मुस्कान, अभिषेक,
कृतिका, अकृत, मुदित, अक्षिता, सेजल, हिमांशु। बेटा आपकी ऑप्शन बी जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन डी अगेन इज द रॉन्ग ऑप्शन। सानिया बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सानिया ने भी आंसर सही दिया है। आदित्य राणा, तानिया, प्रशांत। सभी स्टूडेंट्स ने बेटे इसका सही आंसर दिया है। Plants with poor root system are propagated through grafting. So your option D is the right answer for the question number 8. Plants with poor root system are propagated through grafting. So सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो है वो सही दिया है। So your option D is the right answer. Now shift to the question number 9. And your question number 9 is, how is diploid offspring produced through parthenogenesis? Diploid offsprings कैसे produced होते हैं through the process of parthenogenesis? Option A is from haploid egg cell without fertilization. B, from diploid egg cell without fertilization. C, from fertilization of haploid egg cell. D, from fertilization of diploid egg cell. So it is your question number 9. Diploid offsprings कैसे प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस? ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। फ्रॉम हैप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ हैप्लॉयड एग सेल, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड एग सेल। तो बेटे मैं भी चेक करती हूँ किस किसने सही आंसर दिया है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ईशांत, मुस्कान, सेजल, सानिया, कृतिका, अकृत, प्रशांत, आदित्य राणा, आरव, मुद्दित। तो सभी स्टूडेंट्स ने जो है बेटे इसका सही आंसर दिया है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड थ्रू पार्थेनोजेनेसिस फ्रॉम डिप्लॉयड egg cell, from diploid egg cell without fertilization, without fertilization. So regarding the question number 9, option B is the right answer. Option B is the right answer. Now shift to the question number 10. And your question number 10 is, vegetative propagation occurs in mint through. A vegetative propagation का process mint, and mint का मतलब बेटे आप सभी समझते होंगे पुदीना। तो vegetative propagation जो होती है वो mint में किसके थ्रू अकर करती है? Either runners, B suckers, C offsets and D rhizome. Vegetative propagation occurs in mint through runners, suckers, offsets, rhizome. तो बेटे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स आपके आते रहने चाहिए। सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट है वो आज का 575 का टारगेट रखा हुआ है जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है।
तो अभी मैं चेक करती हूँ कि किस किस स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है। अभिषेक, और सही आंसर दिया है, मैं उन्हीं के नाम लूंगी, अभिषेक, ईशांत, आदित्य राणा, अक्षिता बेटा, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन occurs in mint through with the help of not rhizomes, rhizomes की हेल्प से वो नहीं अक्कर करता है। सेजल ने सही आंसर है, अब मैं उनके नाम लूंगी जिन्होंने सही आंसर दिया है। सेजल, सानिया, तानिया, मुद्दित, कृतिका, अकृत, प्रशांत, हिमांशु बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। Vegetative propagation in mint does not occur through runners. Yes. So regarding the question number 10, तो मुझे अच्छा लग रहा है बेटे कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर देने में, और अल्टीमेटली आपका जो ये एक टारगेट है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सो डू हार्ड वर्क बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत करनी है। So regarding the question number 10, vegetative propagation occurs in mint through suckers. Suckers. So option B is the right answer for the question number 10. तो बेटे आज का जो हमारा टारगेट है एपीएस लाइव क्लासेस का या फाउंडेशन कोर्स का, दैट इज ऑफ 20 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। रेस्ट 10 क्वेश्चंस जो है वो बचे हैं हमारे साथ, हमारे पास, जो कि आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 11। बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं या कोई डाउट्स हैं आपकी या कोई क्वेरीज हैं आपकी, तो लाइव चैट में जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दे सकते हैं। अगर एवरीथिंग इज फाइन तो भी आप मुझे इसका कमेंट जरूर लिखें कि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो भी बताएं, अगर नहीं है तो भी आप लिखते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। विद इन 5 सेकेंड्स में बेटे इसका आप आंसर मुझे दें ताकि मैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट कर सकूं आपके। बेटे मैंने आपसे कुछ पूछा है कि इफ यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट जरूर डाल सकते हैं रिगार्डिंग योर क्वेरीज एज वेल एज योर डाउट्स। आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी शुरू कर रही हूं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखें। The term parthenogenesis was coined by, जो parthenogenesis की जो टर्म है वो किसने दी है? That was coined by. ऑप्शंस आर, कौन कौन सी ऑप्शंस है आपके पास? ऑप्शन ए इज बॉवरी, बी बाल्फोर, सी ग्रोवर, डी ओवन। The term parthenogenesis was coined by, your options are Bovary, Balfour, Grover, Owen. यस बेटे अभी मैं चेक करूंगी कि किस किसने सही आंसर दिया है। तनु ने सही आंसर दिया है। अभिषेक, आदित्य, सानिया, मुदित, तानिया, कृतिका, अकृत, so beta regarding the question number 11, your right answer, that is the term parthenogenesis was coined by Owen. So option D is the right answer for question number 11.
ये सेजल ने भी सही आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रशांत ने भी सही आंसर दिया है। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 12 एंड योर क्वेश्चन नंबर 12 इज, तो सभी बच्चे जो हैं बेटे इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में लिख रहे हैं या नहीं? ऑल द स्टूडेंट्स, क्या वो सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में इन क्वेश्चंस को लिख रहे हैं या नहीं? नाउ योर क्वेश्चन नंबर 12 इज, in grafting stock is option A is stem of desired variety, B bud of desired variety, C part of rooted plant, D part to be grafted. So there are four options regarding the question number 12, and the question number 12 is, in grafting stock is stem of desired variety, bud of the desired variety, parts of the rooted plants, or parts to be grafted. तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस जो बच्चे जो है नोटबुक्स में लिख रहे हैं। तनु, सानिया, तानिया, ईशांत, मुस्कान, प्रशांत, अभिषेक। तो चलो सभी बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी नोटबुक्स में क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। तो बेटे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सभी जो हैं वो एक डिसिप्लिन के साथ चले हुए हैं, और आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन जो है वो आपको आपके टारगेट तक जरूर लेके जाएगा। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अब मैं देखूंगी किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है। तनु, अभिषेक, ईशांत, मुस्कान, कृतिका, अकृत, अक्षिता, मुदित, तानिया, सानिया, सेजल, प्रशांत। तो सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, दैट इज ऑफ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट। इन ग्राफ्टिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ rooted plant. So option C is the right answer for the question number 12. Now shift to the question number 13. And your question number 13 is, if stock contains 58 chromosomes, अगर एक stock जो है वो contain करता है 58 chromosomes को, and caesium contains 30 chromosomes, दैट मीन्स अगर एक स्टॉक जो है वो कंटेन कर रहा है 58 क्रोमोसोम्स को एंड सीजन कंटेन्स 30 क्रोमोसोम्स, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन रूटेड एंड एग शेल ऑफ रिजल्टेंट प्लांट रिस्पेक्टिवली। अगर एक स्टॉक कंटेन करता है 58 क्रोमोसोम्स को और सीजन जो है वो कंटेन करता है 30 क्रोमोसोम्स को, आफ्टर दैट कितने क्रोमोसोम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे रूटेड और एग शेल ऑफ रिजल्टेंट प्लांट्स में? ऑप्शंस आर 30 एंड 29, बी 15 एंड 58, सी 58 एंड 15, एंड डी इज 29 एंड 30. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है उसका आंसर दे दिया है। तो चलो मैं चेक करती हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया हुआ है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 13, those students who have given the right answer for the question number 13 are Ishant, Muskan, Tanya, Sania, तो और बच्चे भी बेटे इसका आंसर देने की कोशिश करें। इफ स्टॉक कंटेन्स 58 क्रोमोसोम्स एंड सीजन कंटेन्स 30 क्रोमोसोम्स, then how many chromosomes are present in rooted and eggshell of the resultant plant respectively? So your right option is 58 and 15. 58 and 15. So option C is the right answer for the question number 13. तो अभी और बच्चों ने भी इसका आंसर दिया है। तनु, अभिषेक, मुद्दत,
सभी ने इसका आंसर जो है वो सही आंसर दिया है बेटे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटे। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 14. So your question number 14 is, Akshita beta, option B is the wrong option. The resultant plants respectively that are in the ratio of 58 and 15, not 15 and 58. Asexual reproductive structure of Hydra is, जो हाइड्रा का asexual reproductive structure है, that are gemule, B bud, C conidia, D none of the above. Asexual reproductive structure of Hydra is either gemule, B bud, C conidia and D none of the above. तो बच्चे 20 क्वेश्चंस का टारगेट है, 14 पर हम पहुंच चुके हैं। 6 क्वेश्चंस आपके रेस्ट रह चुके हैं आज के लाइव एपीएस क्लासेस के। So it is your question number 14. तो चलो बच्चे, I will check the answer. तानिया बेटा, ऑप्शन A is the wrong option. अक्षिता बेटी ने सही आंसर दिया है। कृतिका, अकृत, ईशांत, अभिषेक, तनु, सानिया, मुद्दत, सभी ने सही आंसर दिया है। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 14, योर राइट ऑप्शन that is asexual reproductive structure of Hydra is bud. Bud. So option B is the right answer for the question number 14. The right option is bud. Now shift to the question number 15. It is your question number 15. And your question number 15 is, which one is common to, it is your question number 15, which one is common to multicellular fungi, filamentous alga and moss protonema? Which one is common to multicellular fungi, filamentous alga and moss protonema? Your option A is mode of nutrition, B diplontic life cycle, C member of kingdom Planta, D multiplication by fragmentation. It is your question number 15. Which one is common to multicellular fungi, filamentous alga and moss protonema? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है for multicellular fungi, filamentous alga and moss protonema? And the common is mode of nutrition, diplontic life cycle, members of kingdom Planta and multiplication by fragmentation. It is your question number 15. तो बेटे अब मैं चेक करती हूँ कि किस किस बच्चे ने इसका सही आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 15 का। अभिषेक बेटे ने सही आंसर दिया है, तनु ने भी सही आंसर दिया है, सानिया, ईशांत, मुस्कान, मुद्दत, तानिया, कृतिका, अकृत, तो सभी बच्चों ने जो इसका सही आंसर दिया। प्रशांत ने भी सही आंसर दिया बेटा। वेरी गुड बेटा, वेल डन, कीप इट अप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। So beta, regarding the question number 15, multiplication by fragmentation, it is a common to multicellular fungi, filamentous alga and moss protonema. Multiplication by fragmentation. Fragmentation. So this is the right option. Now shift to the question number 16. And your question number 16 is, find out correct order of vegetative propagules.
of plants like potato, ginger, agave, bryophyllum and water hyacinth. आपने करेक्ट ऑर्डर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स का जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, सच एज पोटैटो, जिंजर, अगेव, ब्रायोफाइलम एंड वाटर हाइसिंथ. योर ऑप्शन इज ऑफसेट, बल्बिल, लीफ बड, राइजोम एंड आइज. बी लीफ बड, बल्बिल, ऑफसेट, राइजोम एंड आइज. C. Eyes, rhizome, bulbil, leaf bud and offset. D. Rhizome, bulbil, leaf bud, eyes and offset. E. Offset, bulbils, leaf bud, rhizome and eyes. So it is your question number 16. It is your question number 16. आपने फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑर्डर of the vegetative propagules of the plants, and the plants are potato, ginger, agave, bryophyllum and water hyacinth. तो बेटे अब मैं आंसर चेक करती हूँ रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 16. जिन्होंने सही आंसर दिया है कृतिका, अकृत, ईशांत, सानिया, अभिषेक, तनु, तानिया, मुद्दत. तो ये बच्चे जो है बेटे इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है. अभी कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बेटे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो अपनी आंसर्स देने में ज़रूर रखें, और ये बिल्कुल मत सोचें कि आप गलत आंसर तो नहीं दे रहे हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट और अ सेपरेट इशू, पर अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ज़रूर रखें आप. सो बेटा रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ऑफ द प्लांट्स आर आइज, सबसे पहले आइज, आफ्टर दैट राइजोम, आफ्टर दैट राइजोम एंड आफ्टर राइजोम bulbil, and after bulbil leaf bud, and after leaf bud offset. So this is the correct order of the vegetative propagules of the plants. प्रशांत बेटे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. So well done and keep it up to all the students. Now shift to the question number 17. तो 20 क्वेश्चंस का टारगेट था, 17 पर हम पहुंच चुके हैं. It is your question number 17. Meiosis takes place in. Meiosis किस में टेक प्लेस करता है? योर ऑप्शन इज मेगास्पोर, बी मियोसाइट, सी कोनिडिया, डी जिम्यूल. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 17. तो हरिए बेटा आंसर दें जल्दी से इसका. Meiosis takes place in either megaspore, B myocyte, C conidia and D gemule. For more informative videos, press the bell icon button. तो चेक करते हैं किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 17. ईशांत, मुस्कान, तनु, कृतिका, अकृत, सानिया. तो बच्चे रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 17, meiosis takes place in meiocytes. Meiocyte. So option B is the right answer for the question number 17. Now shift to the question number 18. And your question number 18 is, in water hyacinth vegetative propagation occurs by. Water hyacinth में vegetative propagation जो होती है that occurs by. Your option is offset, B rhizome, C leaf bud, D bulbil. In water hyacinth, vegetative propagation occurs by either offset, rhizome, leaf bud, bulbil. And it is your question number 18.
सो हरिए बेटा, जल्दी से जल्दी कोशिश करें इसका आंसर देने की। एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन water hyacinth vegetative propagation occurs by either offset, rhizome, leaf bud, bulbil। तो बेटे हमें चेक कर लेते हैं किस किस बच्चे ने आंसर। अभी तक सिर्फ तनु ने सही आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो तनु बेटा, वेल डन एंड कीप इट अप, बहुत अच्छे। प्रशांत बेटे ने भी सही आंसर दिया है। तानिया बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। सो बेटा, रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 18, ईशांत, मुस्कान, सही आंसर है बेटे आपका। इन वाटर हाइसेंथ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अकर्स बाय ऑफसेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कृतिका अकृत ने भी सही आंसर दिया है। सो नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज अवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आज बेटे हम 20 क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो योर क्वेश्चन नंबर 19 इज क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल म्योसाइट्स इज। एप्पल म्योसाइट का क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए इज 46, बी 34, सी 78 एंड डी इज 12। It is your question number 19. Chromosome number of apple myocyte is 46, 34, 78, 12. And it is your question number 19. तो बेटे जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। नाइनटीन्थ का जो है वो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है, ईशांत। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लूंगी जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ईशांत, मुस्कान, प्रशांत बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। तनु, सानिया, कृतिका, अकृत। सो बेटा क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल म्योसाइट इज 34. So option B is the right answer for the question number 19. Next is your question number 20. And your question number 20 is which one shows isogamy with non-flagellated gametes? इनमें से कौन है जो आइसोगेमी शो करता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स के साथ? योर ऑप्शन इज यूलोथायरेक्स, बी एक्टोकार्पस, सी स्पाइरोगायरा, डी सार्गेसम। Yes, Akshita beta, option B is the right answer. It is the right answer. Now we shift to the question number 20 and it is our last question for our today's live lecture. That is question number 20 and your question number 20 is which one shows isogamy with non-flagellated gametes? Your options are Eulothyrex, Ectocarpus, Spirogyra, Sargassum. So it is your question number 20. तो आंसर दे दिया है मैक्सिमम बच्चों ने इसका। तनु बेटी ने सही आंसर दिया है। ईशांत, मुस्कान, कृतिका, अक्षिता, सानिया, तानिया। तो सभी स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम जो है इसका सही आंसर दिया है, राइट ऑप्शन दी है। सो स्पाइरोगायरा shows isogamy with non-flagellated gametes. Spirogyra shows isogamy with
non-flagellated gametes. So it is the right option. Yes, Prashant, bit option C is the right option. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी लाइव एपीएस क्लासेस का या फाउंडेशन कोर्स का जो टारगेट था दैट इज ऑफ 20 क्वेश्चंस. तो 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं. एंड इफ यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज 20 क्वेश्चंस देन यू हैव टू गिवन द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. तो बेटे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दे सकते हैं अगर कोई आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं इन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि हम उनको कमेंट्स के थ्रू ही आपके साथ डिस्कस कर सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें. तो कल दोबारा बेटे हम इसी समय पर इसी टाइम पर आपके साथ दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक आपका जो काम है बेटे कि आपने इन क्वेश्चंस को और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आपने गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है और लर्न करना है आपने, ताकि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में जो है वो रिकैप्चुलेट बार बार होते रहें. सो सभी स्टूडेंट्स को बेटा गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड रिवाइज एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस अगेन. थैंक यू बेटा.